آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم نے اس کی ایوب کی کتاب کی 10 آیات پڑھی تھی اور آج جو ہے ہم اگلی 12 آیات کو پڑھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح ایوب سے بات کرتا ہے اور کس طرح خدا جو ہے اس کی زندگی میں یہ دکھ مصائب لا کر جو ہے آج کے ایمانداروں کو روحانی طور پر کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں مشکلات یا پریشانیاں یا دکھ یا مصائب آئیں تو وہ ان میں بھی ثابت قدم رہیں، وہ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور یہی بات جو ہے ہمیں ایوب کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ انسان گو کہ آج کوئی بھی انسان ہو وہ دکھ سے خالی نہیں ہے، اور زبور 39 کے اندر لکھا ہے کہ بہترین شخص جو ہے وہ بھی بے ثبات ہے۔ اس زمین پر اس زندگی کے اندر یا کسی بھی آپ شخص کو دیکھیں تو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، یہ بڑا خوش قسمت شخص ہے، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھ میں یہ کمی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میرے پاس روحانی دولت نہیں ہے، یا میرے پاس زندگی کی دوسری ضروریات زندگی جو ہے وہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ابدیت میں شامل ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں انعام میں مل جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے پہلے باب کی 11ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ لکھا ہے، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تفکیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اب دیکھیں کہ خدا نے شیطان کو یہ اجازت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری یا کمزوری یا کوئی مشکل ہماری زندگی کے اندر آتی ہے تو اس کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن خدا کبھی کبھی اجازت دے دیتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں، ہم اپنے ایمان میں خداوند میں بڑھ سکیں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ خداوند نے اسے اجازت دے دی ہے کہ صرف اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تب شیطان جو ہے وہاں سے چلا گیا اور ایک نیا منظر جو ہے شروع ہوتا ہے۔ پہلا منظر زمین پر ہے، دوسرا منظر آسمان پر ہے۔ ابلیس جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنورزیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، خدا سے اجازت لیتا ہے اور زمین پر آ کر جو ہے مقدس ایوب کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب دیکھیں کہ ایک اس کا نوکر جو ہے وہ آ کر خبر دیتا ہے، اور خبر یہ دیتا ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو، اپنے مواشیوں کو چرا رہے تھے کہ ایک گروہ نے جو ہے ہم پر حملہ کیا ہے اور سبا کے لوگ جو ہیں ان پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور ابھی یہ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک دوسرا آتا ہے، اور 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب دیکھیں کہ مقدس ایوب کے جو نوکر ہیں وہ اسے آ کر خبر دیتے ہیں
मुकद्दस अयूब जो एक वक्त में बहुत बड़ा शख्स है, बहुत अमीर शख्स है और उसके पास बहुत सारी दौलत है, और उसे आकर ये खबर दी जाती है कि तेरे माल मवेशी जो है वो तबाह हो चुके हैं। एक गिरोह आकर कहता है कि तेरे बच्चे जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और इस पर जो है मुकद्दस अयूब का रिएक्ट कैसा होना चाहिए। इस पर अगर कोई आज का शख्स होता तो वो खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देता कि खुदावन, क्या दुनिया के अंदर मैं ही अकेला शख्स हूं? क्या खुदावन कोई और शख्स नहीं है जिस पर ये मुसीबतें आती? क्या खुदावन मैं ही अकेला बचा हूं कि सारियां मुसीबतें खुदावन मेरे ते ही आनियां ने? लेकिन अयूब का ऐसा रवैया नहीं है। और 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया। अब देखें कि पे दर पे जो है अयूब को खबर दी जाती है। पहले खबर दी जाती है कि उसका कासिद आकर कहता है कि तेरे गधे और माल मवेशी जो है उन पर हमला हुआ है। फिर आकर कहा जाता है कि आसमान से आग नाजिल हुई है। फिर आकर कहा जाता है कि तेरे नौकरों को जो है तहतीक कर दिया गया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। ये सब उसे माली तौर पर कमजोर करने के लिए था। अब जब उसके बच्चों पर हमला हुआ है तो अब ये उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि जब, क्योंकि एक इंसान जिसकी औलाद जो है उसके मरने से पहले औलाद हलाक हो जाए तो उस शख्स का जमीन पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सारी जिंदगी कुड़ता रहता है कि खुदावन मैं जमीन पर हूं, मेरी औलाद जमीन से मिट चुकी है। तो उस वक्त ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी बाप के लिए या मां के लिए बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि उसकी औलाद जो है उसके मरने से पहले हलाक हो जाए। और मुकद्दस अयूब की औलाद जो है वो हलाक हो चुकी है, और अब अयूब जो है इस हालत में क्या कर सकता है? और लिखा है कि उसने अपना पैरहन चाक किया। पैरहन चाक करने से मुराद है कि उसने अपने कपड़े फाड़े। और मगरबी एशिया का ये कल्चर है कि जब किसी पर कोई मुसीबत आती है या मुश्किल आती है या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो ये मातम करने का एक अंदाज है कि उसने अपना सर मुंडाया और उसने अपने कपड़ों को फाड़ा और जमीन पर गिरकर खुदा को सिजदा किया। अब खुदा को सिजदा करने से मुराद यह है कि इस बात का इकरार करना है कि खुदा हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। खुदा ही हर चीज का खालिक और मालिक है। खुदा ही हमारी जिंदगियों का राजिक है और वही ऐसी वाद हस्ती है जिसे हम सिजदा कर सकते हैं। अयूब जिसके पास सब कुछ था, अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अयूब ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी की है, उनके लिए कुर्बानियां भी करता है, उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन अब जो है उसने अपनी औलाद को खो दिया है। और अब वो क्या कहता है और कहा कि नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। अयूब, मुकद्दस अयूब जो है वो कहता है कि मैं नंगा ही मां के पेट से आया था और नंगा ही वापस जाऊंगा। कोई शख्स भी हो, वो जब जमीन पर आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। जब वो जमीन से वापस जाता है, अपने मालिक की तरफ जाता है, अपने हकीकी खालिक से जा मिलता है, तो तब भी वो खाली हाथ होता है। क्योंकि हम इंसान जमीन पर आते हैं तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये खुदा ने हमें फजल दिया है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। और ये इसी शर्त पर मुमकिन है जब हम उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और मुकद्दस अयूब जो है वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं लेके आया। इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि खुदावन जो दौलत तूने मुझे दी थी, खुदावन जो माल मुआशी तूने मुझे दिया था, वो सब मेरा नहीं था, बल्कि खुदावन वो तेरा दिया हुआ था। और अगर तूने वापस ले लिया है
तो मुझे इस पर कोई उज़र नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ तो तेरा दिया हुआ था और तूने ही वो सब कुछ वापस ले लिया है। और आज भी ईमानदार को ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि जब खुदा उसे बहुत कुछ दे तो उसे खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसे अपने बच्चों के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने खानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करता है तो ये उन्हें सिखाता है कि हमें हर वक्त खुदा को मुबारक कहना है, हमने उसकी सताइश करनी है, हमने उसकी इबादत करनी है, क्योंकि वही इबादत के लायक खुदा है। लेकिन आज के दौर में हम ऐसा बहुत कम करते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम उन्हें खुदा की हजूरी में लेके आएं, या हम उन्हें बताएं कि जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं जाएंगे, जब तक हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम ज़बूर भी गाते हैं, एक पीढ़ी जेड़ी आगेगी वो आगे क्या करेगी, दूसरी नस्ल को सिखाएगी। वो पीढ़ी जो है जब हम सिखाएंगे तो फिर वो आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, वो आगे सिखाने वाले होंगे। लेकिन आज के दौर में बदकिस्मती ये है कि हम ऐसा काम नहीं करते। हम बतौर माँ बाप जो हैं ऐसा काम नहीं करते कि हम उन्हें खुदा की तालीम से वाकिफ करवाएं। हम कलाम पढ़ना, उस पर तहकीक करना, खुदा की बातों को जानना समझना नहीं सिखाते, बल्कि इसके ऑपोजिट जो है हम दुनियावी मामलात में मगन रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने उनकी ऐसी तरबियत करनी है, हमने उन्हें इस तौर पर तैयार करना है कि वो दूसरों को भी सिखा सकें। और दाऊद ने और मुकद्दस अय्यूब जो है उसने खुदावंद पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि खुदा को मुबारक कहा। आमीन। और मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी से ये बहुत बड़ा पहलू नजर आता है। और मुकद्दस दाऊद जो है वो भी कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। यानी हर हालत में, हर वक्त हमें खुदा को मुबारक कहना चाहिए। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हमें जिंदगी दी है, हमें सांसें दी हैं, हमें सांसों का तसलसल दिया है, इन सारी बातों के लिए खुदा को मुबारक कहना चाहिए। और लिखा है कि इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर भेजा काम का ऐब लगाया। अब अय्यूब ने खुदा पर कोई इल्जाम नहीं दिया, बल्कि उसने खुदा को मुबारक ठहराया है। और यही ईमानदार की जिंदगी का सबसे बेहतरीन पहलू होता है कि नंबर एक, कि वो खुदा से डरता रहे, खुदा के हुक्मों पर चले। और मुकद्दस अय्यूब के बारे में लिखा है कि मुकद्दस अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंख से अहद किया है, फिर मैं क्यों कर किसी कवारी पर नजर करूं। उसने अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर भी कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया, और ना उसने खुदा की हजूरी में कोई ऐसी बदी की है जिससे उसे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। इसलिए खुदा कहता है कि वो कामिल है, वो रास्तबाज है, वो बदी से दूर रहने वाला शख्स है। और आज के दौर में ईमानदार के लिए क्या सबक है कि ईमानदार जो है, जब खुदा ने उसे बहुत कुछ दिया है, जब खुदा ने उसे दौलत दी है, उसे रिज़्क दिया है, तो जरूर है कि उसे वो खुदा के काम के लिए खर्च करे, खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार रखे, और इस बात को याद रखे कि ये सब कुछ खुदा की तरफ से है, खुदा ने दिया है। और अगर उसे खुदा ने दिया है तो खुदा की उस बड़ी मर्जी के लिए जो है उसे खर्च भी करने के लिए तैयार रहे। और मुकद्दस अय्यूब के जो दुख और मसाइब हैं वो ईमानदार को सिखाते हैं कि उसने हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना है, और बतौर मसीही होते हुए जो है हमारा घर आसमान पर है ना कि जमीन पर। आमीन। क्योंकि ईमानदार जो है वो आसमान का शहरी है, वो जमीन का शहरी नहीं है। तो इसलिए ईमानदार को इन दुनियावी चीजों में अपने आप को फंसाना नहीं है कि वो अपनी रूहानियत में जो है वो फंस जाए और जिस्मानी बातों में फंसा रहे और रूहानी तौर पर तरक्की ना कर पाए। इसलिए दुनियावी चीजों में फंसे नहीं रहना, बल्कि रूहानी चीजों की आरज़ू में रहना है, और इसी ख्वाहिश में रहना है कि जब हम अपने खुदा के सामने जाएं तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि हमें खुदा के सामने दलेरी हो
और हमें खुदा ये ना कहे कि इन्हें वहां पर डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, बल्कि हम ऐसे लोग हों जिन्हें खुदा कहे कि ऐ मेरे बाप के प्यारो, उस सल्तनत में, उस बादशाही के लिए जो अजल से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसमें शामिल हो जाओ। और जब हम उसके फजल के तख्त के सामने जाएं तो हमारे पास दलेरी हो कि हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं, और हमेशा खुदा उनको मुबारक कहते रहें और हमेशा खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते रहें। और इस बात को जानें कि खुदा हमारी जिंदगियों का मालिक है और हमने उसकी वफादारी में ईमानदारी के साथ चलते रहना है। आमीन।